Hello and welcome for Sociology Optional for IS. Today we will discuss about Sociology Optional. In IS, Civil Services Mains, Civil Services Mains, we have to select one subject optional, which weightage is 500 marks, two papers, paper 1 and paper 2. I will teach you Sociology Optional. Then what is the sociology? First of all, we should know about what is the sociology. Sociology, systematic and scientific study of society is known as sociology. Sociology, what is then comes what is the society? Society is like a social institution. Society is a social institution which contains like family, family, economy, polity, education, religion, other many more. And these are the primary institutions, primary, and then there are certain institutions like caste, cults, schools are secondary institutions. Religion is a primary institutions, but caste is a secondary institution. School is a secondary institution. Cults is a secondary institution. Then these are combined together, they form social structure of any society. Social structure of society which influence the behavior of human actions. Means these actions, economy, polity, educations, religion, these influence the behavior of social structure of any society. Example, means suppose you have a lot of money, means you are financially strong. Economy means your behavior to buy the things, you will go for malls. If you are belong to lower middle class family, you will go for Sunday markets. If you are belong to upper middle class family, you will go to foreign for shopping. Anyhow, so this means this is the influence your behavior. Your behavior is decided by your primary institutions. Clear, hopefully. Now, one thing, values are and norms. Values, what are the values? Values are course of interaction which we are learn about our elders, our seniors, our teachers, and norms are actual behavior. What we have learned, we deliver the society. Like, good morning, sir. This is the norms which we have learned from our elders, our teachers. So these are combined together, they form social institutions, and social institutions, these structures are interrelated, and social institutions and primary and social norms are correlated, and they form social structure of the society. Hopefully it is clear to all of you. Okay, now the structure are interrelated to each other, they are exist in relation, not in isolation. It's not a single entity, they are multidimensional structures. Means these are multidimensional structures. Similarly, these structures are related to each other, means this structure are related to each other. And economy, suppose economy in changes in economic structure, inflation, महंगाई जिसको बोलते हो आप. फैमिली इज रिलेटेड बाय द बजट. सपोज बजट आपका चेंज हो जाएगा तो उससे फैमिली में इफेक्ट आएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी उससे बजट में इफेक्ट आएगा. तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड. मोबिलाइजिंग द पीपल, आप मंदिर में जाते हैं, रिलीजन है तो वहाँ पे क्या होता है, गैदरिंग होती है तो मोबिलाइज करता है पीपल को. एजुकेशन इज डेवलप द स्टेट ऑफ मोरलिटी,
आपकी एजुकेशन भी ये डिसाइड करती है कि आपकी मोरल किस तरह से ब्रिंगिंग अप हुई है। तो ये स्ट्रक्चर्स किसको डिसाइड करते हैं? आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिसाइड करते हैं। होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आगे चलते हैं। यदि हम बात करें पेपर 1 में, तो पेपर 1 में जो हमारा पहला टॉपिक है, यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज एंड इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। मॉडर्निटी में हमको बेसिकली पढ़ना होता है कंसेप्ट एंड कॉजेज एंड न्यू करंट कि क्या है कॉजेज। मॉडर्निटी वी हैव बिलोंग, यदि आप बात करेंगे कि हम मॉडर्न बन रहे हैं, मीन्स वेस्टर्न सोसाइटी है, मीन्स वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसको हमको पढ़ना होता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी है, सोसाइटी के साथ साथ हमको और चीज़ों को भी देखना होता है, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन में हमने पढ़ा था। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, वेस्टर्न कंट्री आ रही है। जब इंडिया में अंग्रेज थे तो कहते हैं कि वी आर सिविलाइज पर्सन, हमने आपको सिविलाइजेशन दिया, हमने आपको सभ्यता दी, हमने आपको मॉडर्न बनाया, यू आर अनसिविलाइज। तो ये एक मॉडर्निटी का जो कंसेप्ट है वो इंडिया का नहीं है, वो फॉरेन से आया। इसके साथ ही हमको अगले चैप्टर में पढ़ना होता है कि यदि हम दूसरी यूनिट की बात करेंगे, सोशल थिंकर। सोशल थिंकर में हमको सबसे पहले हमको पढ़ना होता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ये हमेशा कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो बोला कि जो भी हिस्टोरिकल चीज है कैपिटलिस्ट को अपोज किया, उन्होंने दो चीज़ें बताई, एक वर्किंग क्लास, एक बुर्जुआ क्लास। वर्किंग क्लास जो छोटे मिडिल क्लास के लोग हैं, बुर्जुआ क्लास जो हाई कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं। तो उन्होंने एक बेस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। बेस स्ट्रक्चर इज डिजाइन या सुपर स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय द बेस स्ट्रक्चर। क्योंकि यदि आज सोसाइटी में यदि बड़े लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, तो उनका बेस क्या है? वर्किंग क्लास। यदि वर्किंग क्लास काम नहीं करेंगे तो क्या बड़े लोगों की कैपिटलिस्ट कंपनियां रन कर पाएंगे? नहीं रन कर पाएंगे। तो इट मीन्स जो बेस स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर किसको डिफाइन करता है? सुपर स्ट्रक्चर को। होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके साथ ही यदि मॉडर्न हम और क्लासेस की बात करें, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, हैव क्लास है, हैव नॉट क्लास भी बोलते हैं। हैव क्लास जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को होती है, हैव नॉट क्लास जिसके पास वर्किंग क्लास है, जिसके पास बहुत सारे संसाधन नहीं है। और इसमें कुछ यदि हम टर्मिनोलॉजी की बात करें कि फंक्शनैलिटी, यदि सोसाइटी में कब सब कुछ एनीथिंग एग्जिस्ट करती है, डॉडी यदि एग्जिस्ट करती है तो डॉडी का फंक्शन है। तो if anything exists in the society because of their personality, if not the function, it means not the existence. तो जो कुछ भी सोसाइटी में आज हो रहा है उसका वो फंक्शन है। लोग डॉडी दहेज प्रथा के लिए बात करते हैं कि खत्म होना चाहिए, लेकिन यदि है वो है भी तो उसका मतलब उसका फंक्शन है, तभी तो वो है। तो ये इन सब चीजों की बात की गई है। और इसके साथ सोसाइटी में पढ़ने के लिए हमको बहुत सारे थिंकर्स पढ़ने हैं। मैक्स वेबर 6 थिंकर्स पढ़ने हैं, इमाइल डर्किम, तालकट पार्सन, योगेंद्र से, जो इसमें पेपर 2 में भी 3-4 थिंकर्स पढ़ने हैं। तो सोशोलॉजी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं इसका सिलेबस हर एक पेपर से मैच कर रहा है और करंट से कोई ज़्यादा इंटरलिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये ऑप्शनल सिलेबस लोगों को 300 प्लस लेके आ रहा है, जो कि आपको आईएएस के लिए एक प्रॉपर सीट दिलाएगा। ऑप्शनल का सिलेक्शन ही डिसाइड करता है कि आपकी क्या रैंक आने वाली है। ऑप्शनल का सिलेक्शन ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं होने वाला है। दोस्तों, सोशोलॉजी जो है थिंकर्स
यदि आप ऐसे की बात करते हैं तो इस बार जितने भी ऐसे आए हैं वो सभी फिलोसफिकल बेस ऐसे हैं, और फिलोसफिकल ऐसे में हमको थिंकर्स को कोड करना होता है, और वो थिंकर्स सोशोलॉजी से ही आते हैं ज़्यादातर। तो सोशोलॉजी ऑप्शनल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और ये तो एक बेसिक मैं इंट्रोडक्शन आपके सामने दे रहा हूँ, लेकिन सोशोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए यदि हम और डिटेल में बात करें तो रूरल सोशल स्ट्रक्चर, जैसे हमने सोशल स्ट्रक्चर की बात किया तो सोशल स्ट्रक्चर भी कई टाइप का हो सकता है, रूरल हो सकता है, अर्बन हो सकता है। रूरल सोशल स्ट्रक्चर को जो मतलब आपका देहात का है, तो देहात में क्या होता है, गांव में एग्रीकल्चर होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं ताश खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जिसको बोलते हो, तो ये वहाँ का क्या है, एक स्ट्रक्चर है। यदि हम अर्बन स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्बन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सर्विसेज होती हैं, वेंडर्स होते हैं जो इधर उधर घूमते हैं। तो ये क्या है, एक सोशल स्ट्रक्चर है। और बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय दिस स्ट्रक्चर, जो हमारा बिहेवियर है वो इन्हीं स्ट्रक्चर से कंट्रोल होता है कि हमको कैसा बिहेवियर करना है। बिहेवियर इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय द बेस स्ट्रक्चर, कि हमारा बेस कैसा है। ये जो पॉलिस्ट थिंकर है उन्होंने बोला था। हमको थिंकर कोट करने पड़ते हैं दोनों पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो थिंकर के साथ साथ आपको उनका क्या रिलीवेंस है मॉडर्न में, उस चीज़ को भी हमको देखना होगा। इसके साथ ही यदि हम हायरार्की की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर की बात करते हैं, तो उसमें यदि डिवीजन ऑफ लेबर की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मेल, फीमेल, रिजिडिटी वर्ड्स, तो ये सब क्या है, हायरार्की है समाज की। पहले यदि हम वैदिक काल की बात करते हैं, प्राचीन या एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं, तो उसमें सोसाइटी को उस तरह से डिवीजन किया गया था। डिवीजन था कि ब्राह्मण अपर कास्ट लोग इज कॉल्ड ब्राह्मण, सम क्षत्रिय युद्ध के लिए जाएंगे, वैश्य जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग होंगे, और शूद्र जो अपने काम करेंगे, लोगों की सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सोसाइटी का डिवीजन था। उसी डिवीजन को लेकर आगे बात हुई है हायरार्की में। और यदि हम बातें ट्रेडिशन हैव द 4 थिंग्स ऑफ द सोसाइटी, यदि हम मॉडर्निटी ए सोशल चेंज, तो हमको जो पहली यूनिट में पढ़ना है तो सोशल मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। जब मॉडर्न आया, मॉडर्निटी आई, उससे क्या हुआ, सोशल चेंज हुई और सोसाइटी का एक इमर्जेंस हुआ। इससे पहले एनलाइटमेंट आया, एनलाइटमेंट की वजह से भी इमर्जेंस हुआ। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये सोशोलॉजी ऑप्शनल में आपको इन सोशल स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी देखना है, फंक्शनलिस्ट थ्योरी है उसको देखना है, सोशोलॉजी थ्योरी एंड अप्रोच एंड प्रॉस्पेक्टिव उसमें देखने हैं कौन से थिंकर का क्या प्रॉस्पेक्टिव है, और फिलॉसफिकल हिस्ट्री भी देखनी होती है कुछ चैप्टर्स में। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यदि हम साइंटिफिक मेथड की बात करें, इसमें क्रिटिक्स भी देखने होते हैं कि किसने ये बोला है और क्या क्या इसके क्रिटिसाइजेशन है, आलोचना। और क्रिटिक के पॉइंट होने के बाद फैक्ट और वैल्यू की यदि हम बात करेंगे तो इसमें फंक्शनलिज्म है, पोस्टिज्म है, मार्क्सिज्म का कन्फ्लिक्ट है, और फिनोमेनोलॉजी है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, और एथनोमेथोलॉजिकल है। तो ये पीपल का पर्सपेक्टिव है, माइक्रो थ्योरी है और माइक्रो थ्योरी है। तो सभी को हम एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे फंक्शनलिज्म में, और आगे की चीज़ों को होपफुली इंट्रोडक्शन में इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आगे की क्लासेस में हम सिलेबस वाइज हर एक चैप्टर को नोट्स प्रॉपर तरीके से क्लास में पढ़ाएंगे। होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।